aspects which are there in syllabus Hmm. to the students who have already not learned English literature or criticism. Otherwise, what happens in at MA when we teach, the students who have already learned English literature, so many textbooks, poems, as well as drama, novels, so many things, and even literary criticism, starting from Plato and Aristotle. Right, right. So they have a background, but I find it difficult many times to present some aspects, some ideas amongst you all, although Hmm. you all are seniors, but you, as you have not any formal education in literary criticism, it becomes difficult to present some ideas, because what happens at higher stages when we talk about some concepts or ideas, you have the background knowledge of the earlier aspect. Here it is lacking, and that is why, but still I try my best to clear the ideas and concepts. No, but Hmm. you are critically you are teaching critical approach, Yeah. critically and in a appreciating manner, because for us those who are not having literature background, for us it is very good because we are blank mind in that case. So Yeah. what you basic concept what you are teaching, that is highly palatable and acceptable. Of course some literature, author, poem, there are as a part of general knowledge something we know, but we talk about the basic thing what you taught, traditional approach or new criticism, what is there in what should be there. That is good, we are enjoying. Hmm. But what happens when we talk about Hamlet? Huh. So if I am talking about Hamlet in any other university at MA level, Yes. then students know what is there in Hamlet. Hmm. But Hmm. here, you generally you know, Ah, but I not did in the detail. Shakespearean tragedy, and you know about Hamlet, and you know what to do and what not to do. That kind of Right. general knowledge we have. Not in But detail. what Yes. is the problem of Hamlet, and what are the issues, and how it is a great tragedy, that we don't know. Right. And here, when I am talking about a critical essay written by T.S. Eliot on Hamlet and its problem, then I cannot go on teaching what is there exactly in Right. Hamlet. Right. So that creates a gap between you and me. I Yes. mean, when there is a lack of understanding of the problem, Hmm. and I go on talking about the problem without having mentioning that Yeah. problem, then it creates a problem. So that is why I try to fill in the gap wherever it is possible for me also, because we too have some time constraint. Hmm. Actually, I wish to finish today this first unit and the new criticism as well as Russian formalism. Hmm. But let us see how much we can cover today. And There second is, thing, madam, there is just one question. Like in today's topic, it is said Western methods of understanding discourses. yeah, So, what does this discourse stand for? discourse is a kind of, written discourse can be either Story. oral or written, right? So whatever discussion, like you study in Vad Parampara, now Vad is kind of discourse, Hmm. right? So in Vad Parampara, you study the discourses which had been occurring in ancient India, right? And those discourses were philosophical, darshanik discourses on Dvaita, Advaita, what is the form of Brahma, etc. Right? Here in Western discourses, generally it is the literary discourse. Whatever is there in our syllabus, they are literary discourses. Like if we, as I told you, we consider we start from Aristotle and Plato. Then what kind of criticism came into existence? Chronologically, if we go, then there are so many critics, and there were so many schools of critics as well as writers, dramatists, poets, like there were metaphysical poets. Now who were they, what were their characteristics of metaphysical poets? Donne was one of the major metaphysical poets. Now what are the characteristics? It takes at least 5 lectures
to understand what is metaphysical poetry. The same way, every discourse takes 5 to 10 lectures, and apart from lectures, you require to read the original text. So I am going to provide you mm, some material, not text exactly, but the essays which are written by I. Richards or T.S. Eliot or William Emerson. There are books available on internet also. If you go to the website Internet Archives, many books, so many topics are available. So even if you don't have books physical in physical form, you can utilize this source material. And I am going to provide you enough material so that whatever you have not understood through these lectures and through my efforts, then you can read and try to understand. And even if there are some questions, then we can try to solve them out. Right? So I will now want to start. So I will. What we were being taught in the first classes was criticism, critic. Traditional So approach. in Hindi, or I think in Gujarati also, do they call it alochana? Yes, same. Okay. Alochana. In Gujarati, we call it Vivechan. Yes. Alochana, that is criticism. So this criticism is always in what form? It is a neutral form, or Sorry? like pro. Normally, we take criticism in the form of negative or positive or No, no, neutral. no, no. See, criticism is, see, in general sense, when we say he is criticizing, then it is negative. But when we talk about literary criticism, criticism is not always negative. It is helping to find out interpretations, various meanings, various nuances of meanings rather. यानी इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है. तो इसीलिए तो इंग्लिश में तो ये जो वेस्टर्न डिस्कोर्सेज है, इसमें तो क्रिटिसिज्म इज वेरी मच इनवाइटेड इवन बाय ऑथर्स, because so very often today what we are discussing is on the same topic, ki how this criticism, whatever is written, whether it is a poem or it is an essay or it is a theory, no, another critics will write their own views and opinions. Now, this opens up what we say vistas for discourses. And as you know, and we all know, that these people, even English people, are broad minded. They are ready to accept new ideas, they are ready to accept new ways of thinking. And that is why criticism is not, maybe in some cases it may be negative, but in most of the times it is helpful even for Madam, us. Suppose I madam, give you a poem, one हाँ minute sir. हाँ ताजी. Suppose I provide you a poem, and if you don't understand, and if you read the critical review on the poem, you will be able to understand so many things which earlier you had not understood. Yes sir. In our literature, Kabir has very clearly written, निंदक नियरे राखिए. तो हाँ. यहाँ जो कबीर कह रहे हैं वो निंदक मतलब यू प्लीज एनालाइज माय पोएम, यू प्लीज एनालाइज, यू गेट, यू रिसीव फीडबैक एंड देन यू इम्प्रूव योरसेल्फ. निंदक मतलब आलोचना, एनालिसिस. हाँ, लेकिन वो भी जनरल सेंस में हाँ, है. जनरल आलोचक जो जनरल समाज सेंस में है. मानो कि मैं कुछ करती हूँ, कोई नया स्टेप लेती हूँ, और आपके निंदक या आलोचक उसकी आलोचना करते हैं, या तो निंदक जो क्रिटिसिज्म जो है उसको जब हम इनवाइट करते हैं, तो वो इसीलिए उस सेंस में वो कबीर कहते हैं कि हाँ. उससे हमारा क्या कहते हैं कि उसको हम कुछ सुधार भी सकते हैं. सुधर भी सकते हैं. यस. If I don't allow any criticism for myself, I will never be able to add something to my knowledge or my personality. Yes. If I allow some kind of criticism, I may come to know about my weaknesses. Yes. Like if I ask you people,
how was my lecture, or do you like the method I teach? And if some of you say something not negative exactly, but if you make some suggestions, if you if you do this in your presentation, if you add some more pictures or graphics or something, then it will be interesting, or we will be able to understand it in a better manner. Then this kind of criticism or this kind of suggestions, they are always helping. And as I told you, in this kind of criticism, in literary criticism, it is hardly taken as a negative factor. It is always taken as a positive factor, which adds to your understanding. The critics help you understand and interpret a work of art in many ways, right? Right. Said, sir? Yes. Yes, Yes. So shall I start now? As please. we Yes. have already tried to understand the earlier trends of criticism, so today I begin with T.S. Eliot. Actually, T.S. Eliot does not belong to the school of new criticism, but he greatly influenced all the new critics, right? And so he helped in the formation of this new critical canon. He wrote one essay called Tradition and Individual Talent. And his another essay, as I told you, is Hamlet and his problems. The third most important essay, Functions of Criticism. All these three essays, see, T.S. Eliot has written so many drama, so many plays, so many essays, so many poems, and so many criticism. But I have selected these three essays which are relevant here, which are pertinent because they gave a line to the new criticism. Now, we will have to understand what he said in Tradition and Individual Talent. Now, and he made some evaluative judgments. He himself was a critic also. So he criticized so many earlier poets like Milton and Shelley, and he condemned them. He had some reasons. See, when a critic condemns or criticizes a poem or a poet, he has some reasons. He has his own thinking, and he writes a detailed note on it, why he is condemning this aspect of a particular poet. Now, in the same manner, he liked metaphysical poets. As I told you, it takes time to understand what kind of metaphysical poetry is. Now, meta and physical, the word itself suggests you the meaning. It is not about the physical things, it is something which is superior to physical things. And the poet is writing on such topics which are metaphysical, which are including metaphysics. And the poet is writing in such a manner that he also takes you somewhere in a different world, right? So T.S. Eliot liked this kind of poetry. He said that poetry must be impersonal. Now, whatever in English literature so far, the definitions of poetry is given by Wordsworth and Shelley and so many people. But generally accepted definition of the poetry is that a poetry is an spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Now, feelings, all of us have feelings, we all have emotions, we all experience so many, pungent emotions so many times, but we don't write poems, right? Everybody does is not a poet. So they are spontaneous overflow of words which comes to a poet. He gets an idea. इन लाइक वी अपने में जो सरस्वती कहते हैं ना, हम कहते हैं कि इसमें तो सरस्वती का वास है, क्योंकि जैसे ही उसको कोई अनुभव होता है, जैसे कोई अनुभूति होती है कि जो उसके हृदय को स्पर्श कर लेती है, तो तुरंत ही वो शब्दों में आ जाती। तो इट इज नॉट an easy thing, or it is not a common thing which can be performed by anyone, right? So these powerful feelings, when they are felt by the poet, when
he recollects them in tranquility. There is a condition. कोई भी काव्य कहीं भी कभी ऑन द स्पॉट नहीं लिख सकता है. हाँ, उसकी फीलिंग्स जो है स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो शब्दों के लिए उसको बैठना पड़ता है, उसको रिकलेक्ट करना पड़ता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसको क्या लगा था, व्हाट डिड ही फेल्ट अबाउट इट. और फिर उसके बाद एक फूल को देखा उसने, तो वो एक्सपीरियंस को याद करता है. व्हेन वर्ड्सवर्थ राइट्स अपॉन टुलिप, then he writes, he recollects this thing in tranquility, in a peaceful condition, with state of mind which is calm, and then he recollects, and then he tries appropriate words, and then he writes a poet, and the poet comes into existence. As I told you, I selected this T.S. Eliot because he gave a line, he gave a direction to the new critics. And this particular tradition and individual talent, this essay is very much important. It is considered to be a turning point in the field of criticism. Now, in tradition and individual talent, he's talking about two things. One is tradition. Tradition means from the Homer, like in our culture, it is Ramayana, Vedvyas, and Valmiki who set the tradition of writing poems, epics. Right. In the same manner, Homer and Iliad were in Western tradition. They were the first poets who wrote epics. So they set up the tradition. So on the one hand, there is a tradition, and on the other hand, there is the talent of a poet who is writing in present times. So, how this tradition is going to help this talented poet who is writing in modern age with his own context, with his own changed scenario, he is writing a poet. So, the whole essay deals with these two major keywords. One is tradition, and second is talent. So, Eliot presents his conception of tradition and his definition of the poet and poetry in relation to this. He wishes to correct the fact that, as he perceives it, in English writing, we seldom speak of tradition. He says that in English, what we say, society, they hardly talk about tradition. They think that we are modern. Why should we think about tradition? Even in literary scenario, they hardly mention any tradition or hardly discuss about any tradition in public. Though we occasionally apply in name in deploring its absence. Sometimes we say, see, when a poet is discussed, he is always discussed in comparison with some traditional poets, earlier poets, that is. So, Eliot posits that though the English tradition generally upholds the belief that art progresses through change, in modern times we say that everything is changing. So, the yoner, इसको क्या कहते हैं, विधा कहते हैं हिंदी में. कविता की जो विधा है वो भी बदलती है. नॉवेल की जो विधा है, नॉवेलिस्ट की, वो भी बदलती है. ड्रामेटिस्ट जो है, जो प्लेज लिखता है, तो उसका भी स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ बदलता है. बिकॉज इन मॉडर्न टाइम्स एवरीथिंग इज चेंजिंग. So in this changing transitional period, how can you talk about tradition? But he says that even though everything is changing, a separation from tradition, literary advancement are instead recognized only when they conform to the tradition. Although the poet is writing something different in the different context, still, when he is continuing the tradition, he has been confirmed, he has been accepted, or he has been recognized as a successful poet. So Eliot himself was a classicist, and he felt that the true incorporation of tradition into literature was unrecognized. That tradition, a word that seldom appears except in a phrase of censor. It was actually thus far unrealized element of literary criticism. Eliot says that so far no critic talks about tradition, although every critic wishes that any poet, any creator of literature, he should continue in a way
the earlier tradition. So this is somewhat what we call a kind of contrast or contradictory statement. Although tradition is not acknowledged, but still the critics wish that a poet or a creator should continue the tradition, the English tradition, in Western literature. Right. So this is the first aspect. As I told you, he says that English seldom speak of tradition, but he also talks about simultaneous order. Now, what is this simultaneous order? He says that tradition is imbued with a special and complex character. It represents a simultaneous order. See, one by one, in one age, one tradition is set. Then again, in the after 50 years, the same tradition is continued with some kind of change. That is called the simultaneous order, by which Eliot means a historical timelessness. Now, what is this historical timelessness? Whenever we talk about history, again it mentions some age, some time period of history. So how historical history can be timelessness? He says that because it is a fusion of past and present. When a writer, any poet is writing, he is fusing the past as well as present. He has some reminiscences from past creators and he is associating it in the modern times, in present times, and that way he is making a fusion of past and present, and at the same time a sense of present temporality. Again, when he is talking about present, as you know, the present moment passes away every second. When I say I'm speaking, the next sentence I can say what I spoke. So immediately the present becomes the past. एक क्षण में अपना जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो पास्ट में बदल जाता है. सो दैट इज टेम्पोरलिटी, क्षणभंगुरता समय की. यानी समय कैसे पसार हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वर्तमान कब भूतकाल में बदल जाता है. After giving this lecture at 6 o'clock, I will say that my lecture is over now. I gave one lecture on new critics and Russian formalism today. Right. So immediately it becomes a past. Actually, every minute, ऐसा भी कहते हैं ना कि जैसे नदी में जो नदी बह रही है उसमें जो पानी है वो वही का वही नहीं रहता है, वो बहता हुआ है पानी. तो आपके पैर कभी भी एक एक ही पानी में नहीं रहते, वो बदलता ही रहता है. द सेम वे टाइम ऑल्सो passes like a river. So you can never say कि I am in present, because the second you speak, the next second makes it a past. So this is temporality. So a poet must embody the whole of the literature of Europe from Homer to present day. A poet's greatness and individuality lie in his departure from his predecessors. Now, this is what T.S. Eliot wants to say. A poet, a great poet, becomes great because although he has learned, he has known what is there in Homer and in other, chronologically, other poets who came in each age, in each era. So many poets are produced, and he has read them, he has known them, and still when he writes, he's different from others. He takes a departure. He does not make a copy. He does not imitate in any way. But he takes a departure from his predecessors. And that is why the most individual part of the poet's work, may be those in which the dead poets, the ancestors, assert their immortality and vigorously, most vigorously. So, how the Shakespeare or Milton they became immortal? The same way, then the poet who knows the tradition, who knows the great tradition rather, and writes, he also becomes a part of immortality in future.
if he is writing today and he is writing of the stature of Shakespeare and Milton, one day he also will become an immortal. Because so this is a historical sense of a work of art. So his individuality, what makes him take a departure from his predecessors is his individuality, his own idiosyncrasy, जो अपनी व्यक्तिगत गुणवत्ता है, जो अपनी क्या उसको बोलते हैं विभिन्नता है, जो भिन्नता है उससे उसकी आइडेंटिटी बनती है, राइट. सो दिस इज व्हाट T.S. Eliot says in tradition and individual talent. The other thing he most importantly mentions is how a poet becomes a poet. See, talent says अपने भी कहते हैं ना कि शेक्सपियर मैंने भी कहा है कि सम पोएट्स आर बोर्न एंड सम आर मेड. उसका मतलब है कि कुछ कुछ पोएट्स जो है, जो कुछ कवि है, उनको हम जिसको कहते हैं ना भगवान की देन होती है, वो गॉड्स गिफ्ट वो होती है. लेकिन पोएट के पास अगर वो गिफ्ट है तो भी उसको काम तो करना पड़ता है, उसको मेहनत तो करती पड़ती है, उसको ब्रेन वर्क जिसको बोलते हैं, उसको मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है टू फाइंड आउट द प्रॉपर वर्ड्स, टू फाइंड आउट द मीडियम, टू फाइंड आउट व्हाट ही से हाउ ही मेक हिज पोएम ए मेलोडियस पोएम. Otherwise, if he does not make any meter, he does not find any proper meter for his poem, then it will be what we say an ineffective poem, or it will not last long. It will not last long for a time. It will be, like Hindi songs. If we try to understand, nowadays there are so many Hindi songs going on, in these modern movies. I don't watch them. I don't watch even movies because I don't have time, and you also might not be watching. But earlier, the songs of 40s and 50s and 60s, still today we remember them. And whenever we play Antakshari, we sing those songs, not today's songs, because there are so many lacuna. So the earlier songs were melodious song. The poets had made, efforts to write good poems, and that is why they have lasted. The words you like, the music you like, the composition you like, the meter you like, everything. So the poet has to make a mental exercise. He has to make a study. Even if he has a gift, he has a talent, the poet has to study so many things. Now, what he can study? Again, to continue his tradition, to become a successful poet in his tradition, he has to, so he is not to forfeit novelty. He is not to lose the charm of novelty, because he may not surrender to repetitions. If there is no novelty, if he is continuing the same tradition in the same manner, using the same meter, the same, what do we say, words, then there will be no novelty. And if there is no novelty, it will be a repetition. And nobody likes repetition. Even if I repeat so many things in my same lecture, you will be bored. So, novelty, to bring novelty in his own style of writing a poem. See, here we are talking about poem, but that does not mean that this criticism is meant only for poem. It is for any kind of literary creator, right? The creator may be a novelist, an essayist, maybe a short story writer, maybe a novelist, maybe a dramatist. It applies to all, right? But for the sake of saving time, we talk about merely the poem or poetry or the poet. So when he can bring novelty in his own work of art, it is possible through tapping into tradition. So he has to know the tradition, he has to study those traditional work of art, right?
When a poet engages in the creation of new work, he realizes an aesthetic ideal order as it has been established by the literary tradition that has come before him. As such, the act of artistic creation does not take place in a vacuum. T.S. Eliot says that there may not be a vacuum anytime, anywhere, because the earlier tradition is always there. When we evaluate or when we write a critical essay on any poet, it will always be with the comparison of any other poet from the earlier tradition, right? So the act of artistic creation does not take place in a vacuum. The introduction of a new work alters the cohesion of this existing order and causes a readjustment of the old to accommodate the new. So this is the task of the poet. He has, you know, कभी कभी हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भी फिल्म में क्या होता है, तो क्या होता है, तो लव होता है, ड्रामा होता है, कभी कभी हम उसको मेलोड्रामा भी कहते हैं, ठीक है ना। एक कपल होता है, या तो इधर वो डिफरेंट कास्ट के होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और फिर वो मिलते हैं, तो और उसमें एक विलन आता है, तो विलेन इज देयर, कपल इज देयर, love is there, marriage is there, the problem is there, the conflict is there. So these are the basic elements of any drama or any, what do we say, mm, uh, film. In the same manner, in poetry, what can be the theme, what can be the content? The content is life. It may be a physical aspect, it may be a metaphysical aspect, it may be expressing love, it may be expressing romance or pity or pathetic experience. All this can be the content of any poem. But now the poet has to, what we say, trade upon the tradition, and for bringing some kind of novelty in his work of art, he has to study, and that way, while bringing novelty, he becomes successful, he is recognized. And second thing, what T.S. Eliot says is the impersonality of the, what we say, impersonality of poetry. Now, as I told you, the accepted definition says that a poetry is an outburst of powerful feelings, and it is when it is recollected in tranquility, then it becomes a poem. Now, the T.S. Eliot is talking very opposite of it. He says that a poetry should be impersonal. So when a poet tries to escape from his own personal emotions and he mold his poem into an objective experience, then his poetry becomes impersonal, and hence it exists independent of a poet. So there is no need to understand what kind of situation was there when the poet wrote this poem. Now, the second word is talent. As I told you, the first is tradition, and continuing the tradition and bringing some novelty in the modern context. The poet, when he is writing a poem, he becomes successful because he brings out some novelty in it. Now, to bringing out this novelty in our own context, in modern context, the poet requires a talent. Now, what is this talent? As I told you, according to T.S. Eliot, talent is a genius. A genius, a person who is a genius, is with which poet is born. And this kind of poet has a talent. The talent means, as I told you, it is a God's gift as well as efforts. Both things work out. If I have been given a gift by God of writing a poetry or composing music or anything else, of dancing, but if I don't make any efforts, and that is why T.S. Eliot says that he has to study and he has to pass through a process, a proper process which makes him a successful poet. Now there are some Sanskrit definitions of pratibha.
In Sanskrit, talent is called pratibha. A poetic intuition is an inborn impression or sanskara inherited from previous birth. ये हमारा एक कंटेंशन है कि हम भारतीय लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, तो हम मानते हैं कि जो टैलेंट है, आजकल नहीं 5-6 साल के बच्चे कुछ कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डिनरी कुछ काम कर देते हैं, या जैसे नहीं 2 साल का बच्चा पूरी पूरी हनुमान चालीसा बोल जाता है या गीता के श्लोक बोल देते हैं. सो दैट इज फ्रॉम संस्कारा, फ्रॉम प्रीवियस बर्थ. अगले जन्म के कुछ संस्कार उसमें है, तभी ये पोएटिक इंट्यूशन या प्रतिभा बनती है, ऐसा कहना है. चिरंजीवा करके संस्कृत के कोई विद्वान है, वो कहते हैं कि इट इज ए क्लियर व्यू ऑन द कैजुअल फैक्टर ऑफ पोएट्री. He says pratibha which is assisted by shruta and abhyasa brings forth poetry. तो कवि को अगर पोएट, सक्सेसफुल पोएट, अच्छा एक पोएट बनना है तो उसको श्रुत यानी कि वो जो ट्रेडिशन है आगे की, उसको सुनना है और फिर अभ्यास करना है. यानी ये जो डेफिनेशन है वो सेम जो कहते हैं टीएस एलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, वही यहाँ पे एक वाक्य में आ गया है कि श्रुत यानी क्या है कि आगे की जो ट्रेडिशनल पोएट्री है उसको सुनो एंड उसका अभ्यास करो, और अभ्यास के बाद ही कोई नई पोएट्री की प्रतिभा जन्म ले सकती है. प्रतिभा रिफर्स टू द इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव जीनियस. ये आगे आ गया कि इट इज ए काइंड ऑफ इंट्यूशन, और जीनियस जो होता है वो भी प्रतिभा है. यानी कि ऑल मेंटल एंड फिजिकल प्रोपेंसिटीज स्प्रिंग फ्रॉम प्रतिभा. यानी कोई एक व्यक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करता है तो उसके पीछे उसकी जो ऑर्डिनरी जो क्या कहते हैं रोज बरोज की प्रक्रिया जो करता है वो भी सबसे अलग होती है. वही आदमी टैलेंटेड होता है और वही अपनी टैलेंट्स को आगे तक ले जा सकता है. नाउ इट इज द डेफिनेशन बाय भर्तृहरि. Bhartrhari holds the view that because of pratibha, a cuckoo inherits the ability to sing. ये प्रतिभा है एक कोयल की जो क्या कहते हैं गा सकती है. कौवा नहीं गा सकता, कौवा कौ करता है, तो इट इज अ प्रतिभा. स्पाइडर्स इनहेरिट द एबिलिटी टू वीव द वेब. जो अपने जाल बना लेते हैं स्पाइडर्स, तो वो उसकी प्रतिभा है. वैसे ही वो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने ब्यूटीफुल नेस्ट बना लेते हैं, तो वो भी उसकी अपनी एक प्रतिभा है. वो हर एक पक्षी में नहीं है. वैसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भी किसी के पास वो जो आर्ट होती है, कुछ वर्क करती है कुछ लेडीज, जैसे कच्छ में वो वीविंग चलता है, सॉरी वर्क चल रहा है, हैंडवर्क, वो वहां की लेडीज कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है. जैसे साउथ गुजरात में और महाराष्ट्र में जो वाली पेंटिंग है, तो वहां के ट्राइबल है वो वाली पेंटिंग अच्छे से कर लेते, लेकिन ये प्रतिभा, ये आर्ट सभी में नहीं आ सकती, एंड दैट इज कॉल्ड द टैलेंट. Bhartrhari says that we cannot act unless words come to our consciousness. हम कविता तब तक नहीं लिख सकते जब तक शब्द हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में नहीं आते. So Bhartrhari explains the nature of pratibha as anivarchaniya. Anivarchaniya means that which cannot be described to others. तो ये है कि ये ऐसा ही है, ऐसे हम प्रतिभा को डिफाइन नहीं कर सकते. ये प्रतिभा जो है वो अनिवर्चनीय है, ऐसा भर्तृहरि का कहना है. पोएट एंड स्टडी, यानी पोएट को क्या पढ़ना है और क्या उसको पढ़ना चाहिए. हमने पहले ही बोल दिया कि पोएट शुड स्टडी. तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? तो उसको ये पढ़ना चाहिए कि जिससे उसका अपना टैलेंट है, उसका जो पर्पस है पोएट्री राइटिंग का, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, कुछ एनक्रोच नहीं करे, या तो उसकी अपनी जो टैलेंट है, वो जो पोएटिक आर्ट है, उसको खत्म नहीं कर दे. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको जो आउटर वर्ल्ड से जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो कभी कभी आपकी प्रतिभा, आपकी लाइकिंग, आपकी आर्ट, आपकी जो क्या कहते हैं टेंडेंसी है, उसके विरुद्ध जाती है.
जैसे आजकल आपको बहुत अच्छा म्यूजिक तो क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आपको वही नॉइजी म्यूजिक सुनने को मिलेगा, वेस्टर्न म्यूजिक होगा या तो जिसको हम घंघाट कहते हैं ऐसा म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो अगर म्यूजिक लवर जो है वो वैसा ही म्यूजिक सुनता रहा बाहर, तो अपनी जो लाइकिंग है या तो अपना जो मूड है म्यूजिक कुछ कंपोज करने का, तो वो उसका चला जाएगा। तो वैसे ही पोएट्री के जो रचयिता है उसको अपनी पोएम्स की पोएटिक क्वालिटीज को सुधार सके, ऐसा ही कुछ अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो उसका जो पोएटिक सेंसिबिलिटी है वो परवर्ट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, वो विकृत हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव रिलेटिव के बारे में जो इन्होंने कहा है, नाउ ये जो एक टर्म है ऑब्जेक्टिव रिलेटिव, वो इन्होंने यूज करी है इसमें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। उन्होंने टीएस एलियट ने कहा है कि हमें जो इम्पर्सनैलिटी चाहिए वो कैसे आ सकती है, because everybody says that a poet is expressing his own subjective experiences, his emotions, and how it can be blissful or how it can be helpful to the poet when he becomes objective, when he becomes impersonal. So, in that way, in tradition and individual talent, he says that he has to be impersonal by having, definitive devices, a specific formula. In literature, when you try to, from personal, it becomes a general experience. It becomes a larger experience because when you read, you also feel the same feelings. So, when it becomes possible, when the poet becomes impersonal, he comes out of his own subjective experiences and he tries to mold that experience into a very general type of experience, and he uses some specific formula, a set of objects including events and situations, and accurate selection of words is very much important, because without accurate selection of words this is not possible. Means successful writing, when we are talking about successful writing, that means a poet who is writing in 20th century, his poems might be read for 200, 500 years or forever. So that is that kind of success we are talking about. We are talking about timelessness. Means he becomes immortal. A poet becomes immortal when he is using objective correlative. The second thing in Acha, madam, yes. in previous slides, Eliot says that poet must come out of its, a poet must escape of his emotions. Yes. And here he contradicts the thing that expression of emotion is achieved by specific purpose. Is it not contradictory? Expression of emotions in literature is achieved by a specific formula. See, he is expressing his emotions, but they are not subjective. What T.S. Eliot says that he becomes objective, he comes out of his own self. Yes. And he describes those emotions in such a, see, he is not negating expression of emotions. He says you become impersonal. Right? So even the third party feels the same emotions. And for this kind of objective correlative, that means anybody can correlate with your feelings. See, poetry is an outburst of emotions. Emotions is there in literature. There are two trends. As I told you earlier in my earlier lecture, there are two trends. One is art for art's sake. And as I told you, art means all the arts, not only poetry. But here, because we are talking about literary criticism, we have limited up to this thing, poet, because all the time we cannot go on mentioning all the arts. Right? So it may be contradictory, yes. But It seems now contradictory. I got the point. There he says that
individual emotions, from individual Yeah, it emotions should we not should be escape out. subjective. Yes, It should not be subjective. subjective नहीं होना It चाहिए. should be objective. It Objective. should be impersonal. Yes. And in that way, when he makes his expressions Yes. in poems, then he has to use some specific formula. And when he is talking about this Hamlet and his problems, there is another that is another essay. It is not in tradition and individual talent, but when he talks about objective relative in Hamlet and his problems, I forgot to tell you that in this he says that Hamlet's character is not dealt with in a detailed manner by Shakespeare. See, here is the man who finds faults with Shakespeare also. So this is the task of a critic, and it is true. It is not negative. He says that if you have read Hamlet, you can understand the Hamlet's feelings are not expressed in a right manner. See, if I say that I am feeling very helpless, right? And in a drama, as I told you, it is not now poetry, it is a drama. When he is talking about Hamlet, then the dramatist has to put some words in any character's mouth that shows that a Hamlet is in confusion. He is not, he is feeling pathetic. He is not, happy. He's feeling helpless. Now, this, for doing this kind of expression, he requires some kind of formula. Hamlet will not say, "Ki I am helpless, I am in confusion," right? Or what are my feelings? So, in dramatic, what we say, this thing, genre, there are some techniques. Like dramatists will put these words in somebody else's mouth, right? If we forget about Hamlet, any character who is helpless, who is, his servant might talking about it. See, sir is not in mood today, So these are the formulas. These are the set of objects. There are some specific set of objects which are used by dramatists, by poets, by novelists, including events and situation. See, even in films, हमें लगता है कि ये सीन यहाँ क्यों आ गया अभी, तो डायरेक्टर के माइंड में कुछ ना कुछ उसका, उस इवेंट का सिग्निफिकेंस होता है ना? जब वो कार एक्सीडेंट हो जाता है हीरोइन के साथ, हीरो का, तो तभी एंट्री होती है हीरो की, कहीं ना कहीं तो उनको इवेंट्स बनानी पड़ती है ना. इसके बारे में एक समरसेट मॉम का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि आप अगर शॉर्ट स्टोरी फॉर्म ऐसा है कि आपको शॉर्ट में लिखनी है, वो नॉवेल नहीं है. तो उसने बताया है कि शॉर्ट स्टोरी लिखते हुए उस क्रिएटर को क्या ध्यान रखना है, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला के बारे में मैं बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट पेज पे ड्राइंग रूम के डिस्क्रिप्शन में आपको अगर गन दिखती है वॉल पे, कोई गन टिंगाई है वहां पे, इफ ए गन इज देयर इन द ड्राइंग रूम, तो वो थर्ड पेज तक वो गन फूटनी चाहिए. सी, दिस इज द फॉर्मूला कि शॉर्ट Yes. स्टोरी में आपको कुछ भी विदाउट एनी सिग्निफिकेंस आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है. अगर नॉवेल है, आप डिस्क्रिप्शन लंबे लंबे गांव के, रिवर के, ड्राइंग रूम के, घर के, गार्डन के, कुछ भी लिखते जाओ चलेगा, या तो करेक्टर्स के, उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में नहीं कर सकते. तो पोएट्री इज मोर डिफिकल्ट देन इवन शॉर्ट स्टोरी. तो वहां तो आपको सेट ऑफ फॉर्मूला ऐसे बिठानी है कि विद इन फ्यू वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस. और यहाँ पे ड्रामा की बात है, तो जैसे मैंने बताया, तो उस ऐसे में अगर आप पढ़ते हैं हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो टीएस एलियट ये कहते हैं उसमें कि हेमलेट के कैरेक्टर को शेक्सपियर ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि उसका जो फीलिंग्स है वो ऑब्जेक्टिवली इतनी बाहर आई ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो दिस शुड बी डन बाय द ऑथर, बाय द ड्रामेटिस्ट, यूजिंग ए स्पेसिफिक फॉर्मूला, सो दैट अगर हमें कैसे पता चलेगा, हम कोई ड्रामा देख रहे हैं और कैरेक्टर यहाँ से वहां जा रहा है, दिस इज द वे टू शो कंफ्यूजन. ठीक है,
वो कंफ्यूज है इतना पता चलता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में क्या फीलिंग्स है वो हमें पता नहीं चलेगा जब तक ड्रामेटिस्ट उसका कोई फॉर्मूला ढूंढ के उसकी फीलिंग्स जो है उसका एक्सप्रेशन किसी और तरीके से बाहर लाता है. ठीक है, गणात्रा सर. यस 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 नाउ मैडम, क्लियर. तो यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में अगेन सही बात. वही इसी में है. द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. जैसे मैंने बताया ना कि आपको इमोशन का एक्सप्रेशन तो देना है, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, a sort of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जब मूवीज में देखिए, कभी कभी हम ड्रामा तो आजकल कम देखते हैं, तो मैं मूवीज की बात करती हूँ कि जब आप फिल्म देखते हैं और डायरेक्टर को ये दिखाना है कि यहाँ पे हीरो दुखी है, वहां पे हीरोइन दुखी है, तो वो क्या करते हैं जनरली एक रूखा सूखा पेड़ आपको दिखा देते हैं, है ना. यस. हाँ, तो दिस इज द वे टू शो द फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स. वो आके नहीं बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो डायरेक्टर ये सिंबल्स यूज करते हैं. तो ये सिंबल्स जो है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए सिचुएशन, ए चेन ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे सिंबल्स भी. अब और बहुत खुश है हीरो हीरोइन, तो क्या दिखाते हैं कि वो जो गुलाब है, गार्डन में बहुत फूल है, खुशनुमा वातावरण होता है, वो जो गुलाब होते हैं वो खिले हुए होते हैं, खुश होते हैं. तो वी अंडरस्टैंड, सी दिस वे द फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, using some symbols, objects, situations, or some set of formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. तो ऐसा कुछ करता है, पोएट करता है या ड्रामेटिस्ट करता है, तो वो जो इमोशन है वो रीडर या ऑडियंस के मन में भी वो इवोक होता है. Now let us come ahead of this T.S. Eliot, and now let us talk about what is new criticism exactly. Because after T.S. Eliot, this school started, and one Dr. Crowley, he started. He is considered the founder of new criticism. What is new criticism? हम कब से बात कर रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म, but it is a post-war one school of critical theory that insisted value of a work of art and focused attention on the individual work alone. The value, इसका इवेल्युएशन कैसे करना है, इसके ऊपर फोकस है उनका. ये क्रिटिकल थियरी न्यू क्रिटिसिज्म पोस्ट वर्ल्ड वॉर आई, यानी एग्जिस्टेंस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आई, और उसका फोकस जो है वो इंडिविजुअल वर्क पे है और टेक्स्ट पे है. टेक्स्ट यानी जो ओरिजिनल वर्क है उसके ऊपर है. हम ये बात कर गए, स्टिल आई विल लाइक टू रिपीट इट, कि यहाँ पे न्यू क्रिटिक्स का फोकस जो है इट इज अपॉन ओनली एंड ओनली द टेक्स्ट. वो बुक में क्या लिखा है, वो पोएम में क्या लिखा है, उसी के ऊपर है. उसका राइटर कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके टाइम में कैसे कॉन्टेक्स्ट में वो पल रहा था, वो विक्टोरियन एज था या मॉडर्न एज था, इसके बारे में कुछ भी ये कंसीडर नहीं करते हैं. हैरोल्ड बीवर ने बताया है कि इट डिनोट्स सच क्रिटिसिज्म which concentrates on semantics, meter, imagery, metaphor, and symbol. See, these are all parts of the original text. इसमें बाहर का external कुछ भी नहीं है. Placing emphasis always on text disassociated from biography and historical background. जिसे मैंने कहा, वैसे वो राइटर, उसकी बायोग्राफी, उसकी लाइफ, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या थे, या वो कहाँ पे काम करता था, कोई राजा के अंडर में काम करता था इसलिए इसने ऐसा लिखा, ऐसी कोई बात ये क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में या न्यू क्रिटिक्स उसको कंसिडर नहीं करते. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
applying extra linguistic techniques from psychology or sociology of literature. इसमें ये एक्स्ट्रा जो चीज है इसमें से कुछ भी ये कंसीडर नहीं करते. दे ओनली डिपेंड अपॉन द टेक्स्ट, द वर्ड्स, द सिमेंटिक, द मीटर, द imagery, metaphor or symbols, the text, the words, the techniques, what we say, linguistic techniques, which are used by the author, the poet. What are the characteristics of new criticism? 20th century critics, they emphasized on close reading of the text. What we talked earlier in the last, what do we say, slide. It is the close reading of the text. That means they study what is there in the text, what kind of vocabulary he has used, what is the context, what is the syntax, what is the linguistic aspect of the text. And on that basis, they make a criticism of a particular work of art. They say that this particular work of literature is self-contained, it is self-sufficient. For them, no biography, no historical references, no sociological references or context, they are required to evaluate any text or any work of art, because text itself is an aesthetic subject and it should be evaluated on the basis of the aesthetic objects which are contained in the text itself. What are these aesthetic subjects or objects? They are, as I told you, the vocabulary, the linguistic aspect, the syntax, the symbols, right? The metaphor, the imagery, etc. Now, who is the founder of this new criticism school? As I told you, the John Crowley Ransom is the founder of new criticism of this school, and he found it in, there is a mistake, it is 1841. Right now, I'm correcting it. Then second one, there are so many new critics like Joe Crowley Ransom, and he was a teacher. In the next slide, I have given the data of who he was. Then I.A. Richards, he is also one of the significant new critic. He wrote Practical Criticism, his essay, Meaning of Meaning is another essay. And his essays are based on empirical scientific approach. And these writers were important in the development of new critical methods. What is the aim of new criticism? Why these people, started a school called new criticism? What was their purpose? What was their aim? The new criticism aims at an intrinsic and aesthetic study. This is their words. Analysis and evaluation of an autonomous work of art with an application of formal critical tools, ignoring all the extra literary features like biography, sociology, history, and so on. Right? So, is it clear now? It is an aesthetic study and analysis or an evaluation of a particular work of art individually. See, they are not making even comparison. It is an autonomous work of art with an application of formal critical tools. Now, which are these formal critical tools? We talked right now. These are the imagery, symbols, right? And so many isms, even impressionisms. There are so many critical tools or literary tools, devices, which are used by the poets. And on the basis of that, the critic evaluates a particular work of art. Now, as I told you, the founder of this new criticism, he was born in 1888, John Crowley Ransom, and he was a teacher at a at one college in America, Kenyon College. So he was an educator, scholar, literary critic, poet, essayist, editor. He became the first editor of Kenyon Review. Now, this Kenyon Review was a very renowned journal in America, and it had been,
respected and recognized by so many scholars. So this critic Crowe Renzam, he made a very what we say significant task of writing reviews and editing of Kenyan Review. He was a respectful teacher also among his very accomplished and extraordinary students. I have not included the names of the students because the PPT has its own limitations, but there were very big names in the list of his students. And he is the founder of New Criticism School. This is John Crowe Renzam. The second and another important new critic, I.A. Richards. He is called the father of new criticism, and he is also called the father of psychological criticism. Here we will talk only about new criticism because we have nothing to do with psychological criticism here. So, as a father of new criticism, he wrote the foundations of aesthetics, the meaning of meaning, the principles of literary criticism, and practical criticism. Now, these four, he has written many other things also, but these four works, most of them are the essays. The essays made him the father of new criticism because he was a trendsetter. Now, a very different thing about among the new critics about I.A. Richards is that he gave importance to psychological aspect also. He said that for literary studies, relevance of psychology is also very much important. Now, others were always emphasizing on the elimination of sociological, psychological, historical, and biographical aspect when they were evaluating the literary work, right? So in that way, I.A. Richards is a little bit on different line from other new critics. He was a staunch advocate of close textual and verbal analysis. Other things are the same. He also says that we should make a close reading of the text and we should make a verbal analysis without any reference of its author. He is considered to be a pragmatic and for his pragmatic and empirical approach to criticism. He is I.A. Richards. Now, Richards has defined what kind of critic can be called a good critic. So, he has enlisted some qualities of a critic. He says there are three important qualities in a good critic. First, he must be an adept at experiencing, right? So, he should be open to all kind of experiences without eccentricities. There should not be any eccentricities in experiencing the themes. You know, so very often it happens this so many people what we say in modern terms nowadays we call them hyper. In a small experience, even if it is a small experience, they will make it, you know, like a mountain. आप हम गुजराती में उसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, राइनो पर्वत. So he should not be this kind of observer or experiencer. His experience should be moderate, and he should be able to experience as well as express them without any eccentricity, without any exaggerations. The state of mind, it should be relevant to the work of art he is judging. The critic, a scholar critic, should be always, you know, in the state of mind which is relevant. Means when he is evaluating a poetry or when he is writing criticism of a poetry, he should not what do we say, apply the norms and notions of the any other genre like drama or novel. So his mindset should be properly fit for the art of work which he is judging. Otherwise, he may make some misjudgment or wrong judgments. Secondly, he must be able to distinguish experiences from one another as regards their less superficial features.
Means one experience is different from another experience. He should have that kind of what do we say, wisdom to distinguish between these different experiences, because uh, his experiences are in-depth experiences. A critic should have deep experiences which have some significance. His experiences may not be superficial experiences, right? So if I write on how I came into my office and how I took my lunch and how I went back, how I did my monotonous work in the office, this does not make any sense. This does not make a quality of a critic. A critic should be a good adept experience taker, rather than he should be a good expressioner. Then he must have a good vocabulary, as good as the writer. Sometimes we underestimate the role of a critic. Generally, what happens that we give more importance to the original creator, that is the poet or a novelist or a dramatist, and we underestimate the role of a translator or a critic. In fact, both the task of criticism as well as the task of translation, both are as much of importance as of the original creation. That means when a translator is translating any text, he is recreating the text. The same way, when the critic is writing a critical note on the text on any poem or a novel or any writing, he is recreating the text. So the role of a critic is not any superficial role. He cannot write criticism if he has not studied the text deeply. And the third thing, the third quality of a critic is that he must be a sound judge of values also. He should know the literary values. Here, values means the literary values. These are the Uh, definition of a critic. Madam, what is this literary values? Sorry? Uh, he Yeah, should be literary sound judge values. of values. It may take another lecture, literary values for poems, for dramas, for novels, for short stories, for essays, they are different. But literary values means, as I told you, what kind of vocabulary, what kind of, what we say, accurate words, use of words. See, when a poet is writing a poem, he is not writing an epic. So, generally, a poem is taking 1 or 2 pages. So, he requires some compact words, accurate words. So, what you and I will express, we will express it in a sentence, but the poet has a literary quality, or what we said, a literary, what word I used is literary values, as you said, accurate words. So, when you require 1 or 2 sentences, the poet will write only 1 or 2 words, and he would express the whole mood, the whole feeling within these Means 2 words, right? means in And short we can say he keeps it to संदर्भ में रखता है. वो किस संदर्भ में रखता है, वो किस काइंड का छंद उपयोग करता है, किस प्रकार की मेलोडी यूज करता है, ठीक है ना, उसमें से किस टाइप का म्यूजिक उत्पन्न होता है. ऑल दीज आर लिटरेरी क्वालिटीज और लिटरेरी वैल्यूज, right? And as this Bhartrahari said, it is अनिवर्चनीय. कभी कभी ऐसा लगता है कि all these words cannot be explained or described in a short span of period. It takes 1 or 2 lectures. What are literary qualities for each and every owner? They are different. But as I told you, for literary values, the critic will watch what kind of words, what kind of vocabulary, what kind of meter, what kind of symbols, what kind of imagery. सिंबॉलिकली पोएट जो है वो सीधा सीधा कुछ नहीं कहता है.
तो उसके लिए उसको पूरा सेटअप चाहिए, उसको पूरा डिवाइसेस चाहिए और इसका नॉलेज चाहिए। वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि उसको इसका स्टडी करना पड़ता है। वो स्टडी जो है वो ट्रेडिशनल अर्लियर पोएट्स ने कैसे कविताएं लिखी है उसका वो जो पाठन पठन करता है, तभी उसको पता चलता है कि दीज आर द वेज टू पुट अ गुड थिंग इनटू वर्ड्स। जब हम शब्द में उसको फलित करना चाहते हैं तो किसी एक्सपीरियंस को हम किस किस तरीके से रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि हर एक कवि ने अलग अलग उसकी स्टाइल होती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द लिटरेरी वैल्यूज जो हर एक पोएट में, हर एक राइटर में होती है। इज इट ओके? जी। Yes, yes. संदर्भ गर्भित या सार गर्भित? हाँ, सार ग्रहण अलग चीज है। सार ग्रहण का तो मतलब ये होता है कि मैंने कविता पढ़ ली या तो नवलकथा पढ़ ली और उसका सार तत्व मैंने पा लिया। लेकिन जी। लिटरेरी जो वैल्यू है उसका मतलब, यहाँ वैल्यू का मतलब हम जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करते हैं वो नहीं है। लिटरेरी वैल्यू यानी उसका जो, उसको पैराफर्नालिया बोलते हैं। अगर कोई चित्रकार है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसको उसका ब्रश चाहिए, उसके कलर्स चाहिए, वो कलर्स को रखने के लिए किसी बोर्ड की जरूरत पड़ती है, उसको एक कैनवास चाहिए, ठीक है ना, कैनवास को रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, उसको एक अलग रूम चाहिए जहाँ पे उसको क्या कहते हैं, कुछ प्राइवेसी मिल सके, वो अपने इमेजेस को रख सके अच्छे से। तो these are the devices, these are पैराफर्नालिया जिसकी जरूरत हर एक आर्टिस्ट को होती है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो वैसे ही एक पोएट की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे मैंने बताया उसका नॉलेज ऑफ मीटर, मीटर यानी छंद, तो उसको छंद का ज्ञान है कि नहीं, उसको प्रास कैसे बिठाते। अगर वो हम जैसे शेक्सपियर ने इसमें लिखा है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा वर्स, ब्लैंक वर्स कहते हैं उसको। तो वो अछांदस है लेकिन फिर भी वो पोएम लगती है ना। प्रोज और पोएम में जो फर्क दिखता है वो उसमें दिखता है, बिकॉज ही इज यूजिंग ब्लैंक वर्स। अगर आप छंद यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में भी मीटर है, तो वो मीटर का यूज करते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा इमेजरी का यूज करते हैं, फिर सिंबल्स का यूज करते हैं, फिर जैसे हम कहते हैं ना अलंकार जिसको हम बोलते हैं, अलंकार शास्त्र है हमारे संस्कृत में, तो वैसे ही इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। फिगर्स ऑफ स्पीच में जैसे एक ट्री है, एक वृक्ष है, वो अगर एक व्यक्ति की तरह बात करता है, ऐसा कवि लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उसको गुजराती में व्यक्ति निरूपण बोलते हैं। संस्कृत में भी ऐसे अलंकार है जिसका यूज वो पोएट जो है वो अपनी पोएट्री लिखते समय करता है। तो क्रिटिक जो है इसके ऊपर फोकस करता है कि इसने इसमें से किन कौन कौन सी चीजों का सही इस्तेमाल किया है, प्रॉपर उसका यूज किया है और अपनी पोएम को मोर पोएटिक बनाया है, उसको क्वालिटेटिव उसको उसका बढ़ाया कि नहीं। ये वो जो न्यू क्रिटिक्स है उसी के ऊपर फोकस करते, वो ये नहीं देखते कि ये इस एज का था इसीलिए उसके ऊपर ये, इसके दिमाग पे ये प्रभाव था विक्टोरियन पीरियड का, या रेनेसा का प्रभाव था, पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं, वो जो रेनेसा पीरियड में हुआ एलिजाबेथन एज में, तो उसके ऊपर एलिजाबेथन एज का जो पॉलिटिक्स था उसका कोई प्रभाव था। ऐसी कोई बातें ये न्यू क्रिटिक्स करना नहीं चाहते। वो जो क्लोज रीडिंग जो बात कर रहे हैं ना हम अभी 4 बजे से, वो क्लोज रीडिंग का मतलब यही है कि आप एक एक शब्द को उठाओ और उसका स्टडी करो। क्योंकि जब पोएट एक एक शब्द का इस्तेमाल करता है, व्हेन ही पुट्स अ सिंगल वर्ड इनटू हिज पोएम, देन इट हैज सो मच सिग्निफिकेंस। उसके दिमाग में उसका बहुत सारा प्रोसेस हुआ है, तभी वो उसका उपयोग करता है, सभी वो उसका प्रयोग करता है। और इसी सब चीजों से, ये मीटर से, छंद से, इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है कोई इमेजेस खड़ी करना। तो जब वो आप पोएम पढ़ते हैं तो वो पिक्चर आपके सामने भी खड़ा हो जाता है। तो यही है शैली, यही आर्ट जो है, इसी को लिटरेरी वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है मैडम,
हाँ एक हमारा मतलब रिसेंट फिल्मी एग्जाम्पल देखे तो हाँ माधुरी दीक्षित वाला जो गीत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि लिटरेरी वैल्यू जो पोएम जिस प्रकार से होना चाहिए उसमें वो फिट नहीं बैठता है सिंपली। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कहती हूँ। हाँ और इसीलिए आजकल के ये जो मॉडर्न सॉन्ग्स है वो हमें ज्यादा अपील नहीं करते हैं। यस हम क्लासिकल थिंग्स की बात करते हैं, जो क्लासिकल है। जैसे शेक्सपियर के सोनेट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें मीटर है, उसने यूज किया है, ठीक है ना। तो वो आज तक चल रहे हैं क्योंकि उसमें ये लिटरेरी वैल्यूज है, इसमें लिटरेरी क्वालिटीज है जो हमें पकड़ के रखती है, जो हमें आज भी पढ़ने को इच्छा करती है। और वैसे ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स है, इसमें ऐसे 1 2 3 4 नहीं आएगा, है ना। हाँ एक हंसी शाम करके वो शुरू होगा तो वो शाम का हंसी शाम का पिक्चर आपके सामने खड़ा हो आएगा। जाता है। हाँ आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ सॉन्ग सुन रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर आपके माइंडसेट के, आपके क्रिएट ब्रेन होता के है। सामने वो पूरा जो क्या कहते हैं चित्रावली सामने खड़ी हो जाती है। आप नहीं भी देख रहे हैं वीडियो तो भी आपको लगेगा कि ये हीरो जो है वो ऐसे बैकग्राउंड में घूम रहा है, ठीक है ना। उसमें उसमें मैडम मेटाफिजिक्स इनहेरेंट होती है। हाँ, इसको मेटाफिजिक्स पोएट्री जी जिसकी बात करते हैं ना वो अलग है इससे, लेकिन ये जो है यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड। और Proper गीत words. की बात कर रहे हैं हम, सॉन्ग की बात करते हैं तो उसमें तो म्यूजिक कंपोजिशन बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन पोएम्स में जब हम बात करते हैं तो ये सब उनका पैराफर्नालिया है, उनको इमेजेस है, सिंबल्स है, उनका एक्यूरेट। सबसे पहले तो जो चीज आती है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स है। आप कौन से शब्द आप इसमें चूज करते हैं। जैसे सर ने बोला, गणात्रा सर ने, कि 1 2 3 4, तो ये तो कोई पोएट्री का शब्द ही नहीं है। 1 2 3 4 से लेके 13 तक ले गए क्योंकि उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे इसके अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। अब आई बात लिटरेरी वैल्यूज क्या है इसकी समझ में। Yes. जी Yes, yes. हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आगे बढ़े हम। हाँ ओके, तो जैसे मैंने कहा कि रिचर्ड्स जो है वो इज इकोनोक्लास्टिक। इकोनोक्लास्टिक का मतलब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा तो क्लियर कर दूं कि जो जनरल प्रिवेलेंट प्रिंसिपल्स और जो बिलीफ्स होती है उसको नकार दे, उसको इकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो रिचर्ड्स ने कुछ कुछ बातें ऐसी कही, जैसे मैंने बताया कि वो साइकोलॉजी वाली बात ले आए जो उस टाइम में एक्सेप्टेड नहीं थी। एंड ही इज वेरी मच ओरिजिनल। वो जो खुद कहता है, उसका जो खुद क्रिटिकल प्रिंसिपल्स उसने दिए है, जैसे ये क्वालिटीज ऑफ ए क्रिटिक उन्होंने जो बताई वो अपना अपने तरीके से बताई। एंड ही वॉज ए स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ क्लोज एंड वर्बल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रेफरेंस टू इट्स ऑथर और इट्स एज। ये बात आगे आ गई है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि बात हो गई ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसी का क्लोज रीडिंग करने पे वो रहते थे। हाँ, उसमें ऑथर का क्या रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल शायद आएगा उनमें, लेकिन फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल वो सब नहीं आएगा। और सिंबॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज इन पोइट्री उसके ऊपर भी उन्होंने काफी वो दिया है। अब एक और बात आती है, जैसे मैंने बताया कि न्यू क्रिटिक्स बहुत सारे उसमें से हमने सिलेक्टेड ही लिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि सभी का स्टडी हम अगर करने बैठे तो वो कंप्लीट होगा कभी, इतने सारे हैं। और अमेरिका में 1920s 30s के बाद ये न्यू क्रिटिक्स के एसेज जितने भी जर्नल्स में आए, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स थे ज्यादातर इनमें से न्यू क्रिटिक्स, तो उनका इम्पेक्ट इतना सारा रहा कि ऑलमोस्ट सभी इवेल्युएशन जो होता था लिटरेरी वर्क का वो न्यू क्रिटिक के हिसाब से ही होता था। तो इसमें एक और बात ये विंसेंट एंड बियर्डसली ने ऐड की। ये दोनों ऑथर्स हैं जिन्होंने एक ऐसे लिखा द वर्बल आइकॉन। इस ऐसे में उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा माना जाता था कि अगर हमें टेक्स्ट को यानी किसी लिटरेरी वर्क को, किसी कृति को अच्छे से समझना है तो हमें इसमें जो उसका जो लेखक है
उसका लिखने का इंटेंशन क्या था, वो अगर हम समझ ले तो हम टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, ऐसा एक बिलीफ था. These people, Vincent and Beardsley, they repudiated this general belief that to know about the author's intention, what was what was in his mind at the time of writing, was the only way to correct interpretation of work. किसी भी कृति का अगर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, उसका सही आकलन करना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, तो राइटर ने जब लिखा तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसका इरादा क्या था ये लिखने के पीछे, ये अगर हम समझ ले तो हम अच्छे से इस वर्क को, ये लिटरेरी वर्क को समझ सकते हैं, किसी भी कृति को. ऐसी एक जनरल बिलीफ थी. लेकिन विंसेंट एंड बियर्डस्ले ने ये ऐसे लिख के इंटेंशनल फैलेसी ये लिख के सब इसका नकार कर दिया. द क्रिटिक अज्यूम द रोल ऑफ ए कल्चरल हिस्टोरियन. इनका कहना था कि इंटेंशनल फिलोसॉफी इज कि जब आप राइटर के इंटेंशन के बारे में सोचते हैं, उसको ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो जो क्रिटिक है वो किसका रोल अदा करता है, तो कल्चरल हिस्टोरियन का रोल अदा करता है. एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट द सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. तो क्रिटिक जो है वो अपना टेक्स्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म करने के अलावा वो इधर उधर वो पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और क्या कहते हैं बायोग्राफिकल एविडेंसेस ढूंढने में लगता है कि उस टाइम पे ये हुआ था और इसीलिए वो जो राइटर है और पोएट है उसके दिमाग में ये चल रहा था और इसीलिए उसने इस इरादे से ये कृति लिखी है. ऐसा अगर ढूंढने जाएगा और करेगा तो क्रिटिक जो है वो नॉर्मल लिटरेरी क्रिटिक नहीं रहता है, लेकिन वो एक कल्चरल हिस्टोरियन का रोल अदा कर लेता है, ऐसा इनका कहना था. तो इसीलिए इंटेंशन के बारे में चिंता मत करो. लेखक का जो भी इंटेंशन हो वो अपनी टेक्स्ट में तो वो फलित होता ही है, यानी टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग करो, इंटेंशन ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना इनका विंसेंट एंड बेड्सले का था. उन्होंने दूसरी एक थियरी भी दी और वो थी अफेक्टिव फैलेसी. अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है कि जो रीडर जो है वो जब पढ़ता है कोई भी पोएम या नॉवेल या ड्रामा, तब उसके दिमाग में जो आता है, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसको या तो वो बहुत अच्छा लगता है या कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है, कुछ खटकती भी है. तो जो रीडर का रिस्पॉन्स जो है, वो जो प्रोवोक होता है वाइल रीडिंग, वो भी रिलेवेंट नहीं है. उनका कहना ये था कि इसको भी आप कंसिडर मत करो. आप यानी क्रिटिक, क्रिटिक को neither he has to take into consideration the intentional fallacy, that is the intention of the writer, or the response of the reader. उनको ये भी नहीं कंसिडर करना है कि ये पढ़ने के बाद रीडर के रिस्पॉन्सेस क्या थे, कैसे थे. आइडिया दैट द सब्जेक्टिव मैडम इफेक्ट ये और जो इमोशन. वर्ड मैडम ये यस, जो वर्ड इस्तेमाल किया है इसमें सॉरी, फैलेसी, हाँ ये फैलेसी, जो वर्ड फैलेसी इस्तेमाल किया है, हाँ ये क्यों किया है? वो व्हाई व्हाई ही इज सेइंग, या व्हाई ही इज फैलेसी. टॉकिंग अबाउट फैलेसी? यस यस यस, आई विल टेल दिस. ये कहने का मतलब ही यही है कि ये जो बातें ये गलत है. फैलेसी यानी दिस आर द रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग प्रिंसिपल्स, रॉन्ग बिलीफ्स. वो कहते हैं कि हम इंटेंशन, ऑथर के इंटेंशन के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है. दैट इज अ रॉन्ग नोशन फॉर ए क्रिटिक. क्रिटिक को ये एडवाइस करते हैं कि आप इसमें पढ़ो ही मत, because it is a fallacy, that is a wrong notion, right? The same way Right. affective fallacy यानी कि रीडर का जो रिस्पॉन्स है उसको जो हम कंसिडर करते हैं वो भी एक गलत चीज है, उसको भी कॉन्टेक्स्ट में लेने की जरूरत नहीं है. when you are criticizing, when you are writing a critical note on any work of literature, you need not consider the response of the reader, what he thinks or what he has felt after reading this. That should not be considered. ये इनका कहना है.
अब आई बात फेलेसी, इसने क्यों वर्ड इस्तेमाल किया है. फेलेसी मीन्स दिस इज रॉन्ग, और वो उसको डिनाई करते हैं कि क्रिटिक को कभी भी इंटेंशन, राइटर के इंटेंशन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. नाइदर ही शुड वरी अबाउट द रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज ऑफ द रीडर. इज इट क्लियर? Yes, yes. So idea that subjective effects of or emotional responses which are provoked in the reader's mind are not relevant as the verbal text. उनका कहना ये था कि वर्बल टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट है जिसमें शब्द है, एंड द स्ट्रक्चर, और उसका जो स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स द होल मीनिंग. आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ एंड सिर्फ टेक्स्ट को पकड़ो, उसी का स्टडी करो, और उसी के बेसिस पे आप क्रिटिसिज्म लिखो. उसी के बेसिस पे आप टेक्स्ट के क्या वैल्यूज है, उसकी क्या क्वालिटीज है, उसको इवेल्युएट करो. सो टेक्स्ट विदाउट ऑथर हैव मीनिंग. उन्होंने ये कहा कि हम ये भी अगर नहीं जानते हैं कि इस टेक्स्ट का कौन ऑथर है, तब भी हम जो टेक्स्ट पढ़ते, कविता पढ़ते, तो उसका मीनिंग तो हमें पता चलता है. कभी कभी होता है ना, एनोनिमस लिखा हुआ होता है, यानी कि उसका लेखक कौन है हमें पता ही नहीं है, अज्ञात है, और तो भी टेक्स्ट का मीनिंग तो निकलता है. तो इसीलिए राइटर कौन है, उसके दिमाग में क्या था, उसका पर्पस क्या था, या इरादा क्या था लिखने का, या तो रीडर का या क्या रिस्पॉन्स था इस टेक्स्ट के पढ़ने के बारे में. इस किसी भी चीज को क्रिटिक जो लिखता है, क्रिटिसिज्म, उसको कंसिडर करने की या उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. उसको सिर्फ एंड सिर्फ चिंता करनी है अपनी टेक्स्ट की. तो ये एक बैकग्राउंड में ये बताना चाहती थी कि ये जो एसेज है, द डेथ ऑफ द ऑथर, मैंने शायद पहले रेफरेंस में बताया था आपको अगले लेक्चर में. रोनाल्ड बार्थ्स ने एक ऐसे लिखा, द डेथ ऑफ द ऑथर, और उसके बाद ये सब शुरू हो गया न्यू क्रिटिसिज्म, कि ऑथर की चिंता मत करो, उसकी बायोग्राफी की चिंता ना करो, उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या उसका सोशियोलॉजिकल क्या बैकग्राउंड था, ये सब जानने की हमें जरूरत ही नहीं. द डिबेट ओवर द ऑथर एंड हिज इंटेंशन, this was over, it was finished when this essay came into existence in 1968. तब तक तो बहुत कुछ न्यू क्रिटिसिज्म में हो गया था, लेकिन इसके बाद तो दे ऑलमोस्ट पुट एन a full stop to this discussion over this intention and the biography of the author or significance of the author. ऑथर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. आप जानो नहीं जानो ऑथर कौन है, क्या था, कहां से था, what was his geopolitical background, nothing. So this essay particularly attack the traditional view of the author as the ultimate explanation of the work. वो हम ऐसा मानते थे, यानी कि वेस्टर्न डिस्कोर्स में ऐसा मानते थे अभी तक, कि जो भी ऑथेंटिक वॉइस है टेक्स्ट के बारे में, अगर शेक्सपियर के प्ले के बारे में अगर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वॉइस किसी का हो सकता है, वो तो वो शेक्सपियर का हो सकता है, ऐसा मानते थे. जैसे कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से कालिदास ही कह सकता है, ऐसा हम मान रहे थे. लेकिन वैसा नहीं है, कालिदास का कोई वॉइस नहीं है. कालिदास को जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, या तो शेक्सपियर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर फोकस इज ऑन टेक्स्ट इटसेल्फ. शेक्सपियर के जो ड्रामा है, जो प्लेज है, या जो पोएम्स है, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए. मैम एक क्वेश्चन है. यस, पूछू क्या? जैसे फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई पोयम को या कोई कुछ टेक्स्ट को हमें अगर पोयम को अगर जानना हो तो उसमें एक मतलब उसमें हमें कहाँ पर लिखा गया है या किस सिचुएशन में लिखा गया है उसका नॉलेज होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पोयम. तो वो वाला, और अभी अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है कुछ जानने का, तो ये थोड़ा सा दोनों वो अलग क्रिटिक्स थे, ठीक है ना. मैं यही तो बता रही हूँ कि अभी तक न्यू क्रिटिक्स के पहले जो क्रिटिक्स हो गए,
वो हाँ। सब ये मानते थे कि भाई इसके पीछे क्या सोशियोलॉजी है, इसका बायोग्राफी क्या है, इसके लेके क्रिटिसिज्म होता रहा था सालों तक, ठीक है ना। लेकिन 1920s से ये जो न्यू क्रिटिक्स का स्कूल अमेरिका में शुरू हुआ, तब से ये डिबेट शुरू हो गया। जैसे हम वाद परंपरा में पढ़ते हैं ना, दोनों तरफ होता है, एक तरफ ये भी होता है, एक तरफ वो भी होता है। वैसे पहले के जो क्रिटिक्स थे वो तो मानते थे, और मैंने भी वो आपको साबित करके एमिली डिकिंसन की वो जो पोएट्री है वो मैंने दिखाया था आपको, कि हाँ जी, अगर हाँ आप जी। एमिली डिकिंसन के बारे में ये चीजें, उसकी बायोग्राफी जो है उस नहीं जानते हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे, आप कैसे समझ पाएंगे उसकी पोएट्री को, ठीक है ना। ये मैंने भी बताया था, लेकिन दैट वाज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी हम आ गए हैं न्यू क्रिटिसिज्म में। वो जो था ना वो पहले का, मैंने इसीलिए एक बैकग्राउंड क्रिएट किया कि क्रिटिसिज्म में, इंग्लिश वेस्टर्न डिस्कोर्सेज में कैसे कैसे क्रिटिसिज्म हर एक फेज में क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो उस एज में जब जिसकी बात हुई तब वहां पे वो फिट थी। लेकिन अभी जो न्यू क्रिटिक्स है वो उनका अपना व्यू है ये, और वो इसी हिसाब से क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे का कारण क्या था, सबसे मैंने बताया कि टीएस एलियट का ऐसे आया ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट, उसके बाद आईए रिचार्ड्स आए, उसके बाद विलियम एम्पसन आए, इसके बाद मैंने बोला कि ये तो लेट है, 1968 में हो रहा है, वो तो सब 20s और 30s में चालू हो गया था न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। लेकिन ये जो रोनाल्ड बार्ट्स 1968 में आए, उन्होंने तो फुल स्टॉप ही कर दिया कि कोई बायोग्राफी, सोशियोलॉजी, हाँ कोई बैकग्राउंड हमें ऑथर का या उसके एज का, उस युग में क्या चल रहा था उसका चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। अब आई बात समझ में? ओके, यस मैम। तो हाँ मैडम मैम हमको ये सब नाम इस याद रखना पड़ेगा, ये ऑथर्स के। या डेफिनेटली, ये इसीलिए मैंने मैडम कम से कम नाम रखे हैं। इसमें मैंने मैडम ये बताया वैसे रोनाल्ड बहुत बार्ट्स, सारे क्रिटिक्स है, लेकिन उसमें से जो मेजर है ना उन्हीं को मैंने रखा है। जी सर। ये अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड बार्ट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे शास्त्र वगैरह लिखे हुए हैं हाँ उनमें समय और लेखक का पता ही नहीं है, हाँ तो हमें उस हिसाब से निश्चिंत होकर पढ़ना चाहिए भी क्या लिखा है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा तो ये था ना, वो शायद अगले उसमें हुई थी बात कि, या तो किसी और से बात हुई थी मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई लोग कहते थे कि भारत के जो वेद वगैरह लिखने वाले हैं, तो कुछ वेस्टर्न जो डिस्कोर्स है ना उनको तो ये अपनी बातें समझ में ही नहीं आएगी कि भाई किसी ने कृति लिख दी और अपना नाम ही नहीं लिखा। और इसीलिए बहुत सारी डिबेट है हमारे यहाँ की ये कृति किसकी है, कोई कहेगा कि बास की है, कोई कहेगा कि इसकी है, किस टाइम पे लिखी गई तो वो भी पता नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं। क्योंकि हमारे वहाँ मैंने जैसे कहा ना कि पूरा कल्चर ही अलग है, इनके यहाँ इंडिविजुअलिज्म है। हमारे शास्त्रों में और हमारे वेदों में और वेद काल में तो समष्टि की बात होती थी, पूरे यूनिवर्स की बात होती थी। तो उसमें ये जो हमारे संत थे, शीयर्स थे, जो ऋषि मुनि थे, जो दृष्टा थे, वो तो मानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो चला जाऊंगा। वो टाइमलेसनेस और टेम्पोरलिटी की बात वो ज्यादा अच्छे से समझते थे, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम कहीं भी नहीं रखा था। लेकिन फिर भी वो इमोर्टल है। और जो अपौरुषेय की बात करते हैं हम कि वेदास जो है, जो ऋग्वेद के या उनके जो रचयिता है, तो वो अपौरुषेय, तो उसका मतलब ये वेस्टर्न डिस्कोर्स वाले समझ ही नहीं सकते, कि उनके पास ये समझ ही नहीं है कि ये ईश्वर ने दिया, और किसी किसी जो ऋषि जो उनको लगा ये योग्य है, तो उन दृष्टाओं को उन्होंने ये ओरल मीडियम से दिया और फिर ये लिखा गया, ठीक है ना। तो ये सब बात उन्हें, इसीलिए कभी कभी आप लोग पूछते हो ना कि वेस्टर्न डिस्कोर्सेज यहाँ सिलेबस में क्यों है, तो मैं इसका आंसर इसीलिए नहीं दे पाती क्योंकि ये बनाया है सिलेबस अपने विद्वान लोग, जो हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके है कुछ आईआईटी के प्रोफेसर है, इन्होंने ये सिलेबस अपना रखा है। लेकिन ये इसीलिए वेस्टर्न डिस्कोर्स को हमें समझना है कि हमारा जो डिस्कोर्स था, शास्त्रीय डिस्कोर्स, वो कितना महान था,
ठीक है ना। इसको जब हम कंपेयर जैसे करते जाएंगे, जैसे मैंने टैलेंट और प्रतिभा की कंपैरिजन करी, मैंने वो ढूंढा कि टैलेंट का डेफिनेशन यहाँ क्या है अपने में, तो मुझे मिला वो सब। तो वैसे ही हम करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैडम मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि मेरा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वेद में नहीं है तो आपको मेरी बात भी माननी नहीं है। बिल्कुल मतलब क्रेडिट उन्होंने दृष्टा ऋषिस को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वेद और स्मृति कहते हैं ना हमारे वहाँ। हाँ, तो जब स्मृतिज में, यानी मनुस्मृति नहीं, बाकी स्मृति में भी जो ऐसा चीज ही है लिखी हुई है, लेकिन अगर उसको श्रुति मान्य नहीं करती है, यानी कि वेद मान्य नहीं करते हैं, तो फिर वो स्मृति की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ। यानी आप लोग तो पढ़े हैं वेद का पूरा पेपर, उसमें आया है कि श्रुति और स्मृति, यानी स्मृति या वेद, इनमें से अगर कुछ खड़ा होता है इश्यू, तो हमें जो वेदों ने कहा है वही मान्य रखना है। यानी हमारी परंपरा में तो वेद है वही सदा सर्वदा उन्हीं का मान्य माना जाएगा, वही ऑथेंटिक चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हर एक इंडिविजुअलिटी आजकल, इसीलिए तो अपने भारत में जो चल रहा है ना आजादी आजादी, वो इसीलिए चल रहा है। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, विचारों की आजादी है हमें, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी तो वेदों के पास है। वेदर माई व्यू इज करेक्ट और नॉट, वो मैं वेद को पास जाके ही उसकी ऑथेंटिसिटी ला सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रोनाल्ड बार्थ ने कहा, मैंने जैसे कहा ये न्यू क्रिटिक्स है, और जो पहले जो मैंने कहा वो उस फेज की बात थी, ट्रेडिशनल बात थी। और यहाँ पे भी मैंने इसलिए अभी तक तो हर एक चीज में कहा कि ट्रेडिशनली ये बिलीव था, लेकिन न्यू क्रिटिक्स ने ये चीज नहीं लाई, प्रिंसिपल नया लाया कि ऐसा नहीं है और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीडर इज द क्रिएटर ऑफ मीनिंग, ये क्रिएटर था। रीडर रिस्पॉन्स थियरी में ऐसा मानते थे कि रीडर जो है, जो टेक्स्ट है, उसका सही में मायना जो है, सही में समझ जो है, वो जो रीडर के मन में जो आती है मीनिंग की, वही सही है। यानी कि रीडर इज द क्रिएटर ऑफ द टेक्स्ट। ऐसा भी एक फेज आया उसके बाद, यानी रोनाल्ड बार्थ ने ऑथर का, न्यू क्रिटिसिज्म ने तो ऑथर का, रीडर का, सबका छेद ही उड़ा दिया। बोले ना रीडर का मंतव्य देना है, या तो ऑथर का लेना है, ना उसका बैकग्राउंड लेना है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेना है या सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड लेना है। उसके बाद एक और ऐसे आया मिशेल फूको का, व्हाट इज एन ऑथर। इसमें उन्होंने द ऑथर्स फंक्शन वाज लिमिटेड बाय हिम अप टू द मीनिंग एंड द ऑथर शुड देयरफॉर बी डन अवे विद। उसने उस ऐसे में ऑथर का कोई रोल ही नहीं है टेक्स्ट का मीनिंग करने में, ऐसा बना दिया। मैडम नेक्स्ट स्लाइड करो। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड, मिशेल फूको की स्लाइड। वही है अभी नहीं, रोनाल्ड बर्थ की है। अच्छा ऐसा है, उसी में लिखा है, लेकिन इसी लास्ट लाइन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लास्ट में है मिशेल राइट राइट राइट। इसने ये लिखा कि जो ऑथर है वो तो लिख के चला जाता है, फिर मीनिंग जो है वो तो क्रिटिक्स निकाल दी, या तो टेक्स्ट में से मिलता है हमें। तो इसीलिए ऑथर का तो उसने पूरा छेद ही उड़ा दिया। बोले वी शुड डन अवे विद द ऑथर, यानी कि ऑथर की कोई जरूरत ही नहीं है, डोंट टॉक अबाउट द ऑथर, ठीक है। यहां तक बात आ चुकी। और इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म में इतने सारे नए एस्पेक्ट्स आ गए कि लोगों ने दे रेज्ड ह्यू एंड क्राई। जैसे रीडर रिस्पॉन्स थियरी वाले थे, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले थे, और जो ट्रेडिशनल क्रिटिक्स थे, उन्होंने सबने काफी सारी होहा कर दी कि ये तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो अभी तो ये स्लाइड दिख रही है ना, ऑब्जेक्शंस टू न्यू क्रिटिसिज्म दिख रही है ना। हाँ, तो both the intentional fallacy and the affective fallacy raised voices against the extremist approach. इनका ये जो विमसेट एंड बियर्डले था, उन्होंने लिखा इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, जिसके बारे में हमने बात करी कि ऑथर का क्या इंटेंशन है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। द सेम वे व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर, इट शुड ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी वे। तो इससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लोगों ने, अदर क्रिटिक्स ने
ट्रेडिशनल क्रिटिक्स ने उठाए, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले भी उसके अगेंस्ट में आ गए। They repudiated new criticism's rejection of historical context. उन्हें बोला कि historical context का significance क्यों नहीं है भैया, ये तो है ही, हिस्ट्री तो हमेशा किसी भी एज में, जैसे हम लोग आज इंडिया में रह रहे हैं और हमारा जो न्यू इंडिया का कंसेप्ट है, मोदी आ रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो जिस एज में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट तो ऑथर पे होता ही होता है। तो हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म ने इसका अपोज किया कि हाउ कैन यू रिप्यूडिएट द एग्जिस्टेंस ऑफ impact of history on the author, so they also said it. Then reader response theory वाले आ गए, वो कहते हैं कि how can you deny the reader's response, because after all the text, whatever the intention of the author was, but whatever is the reaction of the reader, he takes the meaning of that text into his own context. और देखिए हमारा सबका अलग अलग कंडीशनिंग होता है ना। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मैं किसी चीज को समझती हूँ। जैसे हमने कहा ना वो संस्कार, हम तो वो संस्कार की भी बात करते हैं, अपना अगले बर्थ का संस्कार भी हमें अफेक्ट करता है। तो इस जन्म के जो संस्कार हमारे मन के ऊपर हुए, कंडीशनिंग का मीनिंग ही यही है कि मैं अपने बचपन से जो देख के आई हूँ और जो संस्कार मेरे मन पे हुए वो तो मेरे मन पे असर करता ही है, ठीक है ना। तो जैसे सर ने, गणात्रा सर ने बताया कि 1 2 3 4 वाली जो गाना है, जो जिसके ऊपर वो नए एज के संस्कार होंगे तो वो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन गणात्रा सर जी आपको और हमारी एज के लोगों को ये गाना, इसका रिस्पॉन्स हमारा अलग होगा, ठीक है ना। तो रीडर रिस्पॉन्स थियरीज जो थे, दे वर डिससेटिस्फाइड विद द कंसेप्ट ऑफ द ओनली द टेक्स्ट इज आइकॉन। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट को ही कंसिडर करेंगे आप तो नहीं चलेगा, रीडर का रिस्पॉन्स तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तो मेरी 31 स्लाइड्स में से सिर्फ 20 सेकेंड आ रही है। तो क्लोज रीडिंग तो मैंने जैसे बताया आपको कि काफी हमने डिस्कस कर लिया है क्लोज रीडिंग पे, लेकिन ये क्लोज रीडिंग कैसा, इन लोगों ने एग्जेजरेशन कर दिया उसका। जैसे जैक्स डेरिडा का एक ऐसे है यूलिसिस ग्रामोफोन, वो इतना हाइपरबोलिक और एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सप्लोजन था, ऐसा किसी क्रिटिक ने बताया कि ये हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक का मतलब मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शायद इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी व्हाट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल जैसे मैंने आपको बताया ना, राई का पहाड़ कर देना, राई का एक छोटी सी चीज है, इसको बहुत बड़ा करके दिखाना, और वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, यानी वो क्या कहते हैं, वो एकदम नॉर्मल नहीं होता है वैसा करना। और एक ऐसे किसी ने लिखा, यही ऐसे वो 80 पेजेस लिखे उसने इस ऐसे में, किसके ऊपर, तो जेम्स जॉइस के यूलिसिस में यस नाम का वर्ड, एक शब्द, और उसका इंटरप्रिटेशन लिखने में उसने 80 पेज लगा दिए। दिस इज दैट क्लोज रीडिंग। मैंने बोला ना कि एक एक वर्ड के ऊपर एम्फेसिस रखने का वो बता रहे थे। तो ये यहाँ तक कि यस शब्द के अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताने में उन्होंने दे डिवोटेड और दे वेस्टेड 80 पेजेस। So this kind of close reading was appreciated or emphasized by new critics. उसके बाद एक FR लुइस करके राइटर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके बाद, क्योंकि फिर रशियन फॉर्मलिज्म भी आता है, और जैसे अभी श्रीजी रानी ने पूछा कि ये सब नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, तो रशियन फॉर्मलिज्म ने तो सब रशियन नाम है, तो मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने जब जस्ट उनके प्रिंसिपल्स की बात करी है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, लेकिन उनके नाम्स मैंने नहीं लिए हैं। तो जैसे मैंने बताया, इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है, अफेक्टिव फैलेसी, रीडर रिस्पॉन्स थियरी,
इन सब को मिटा के जब ये ऐसे आया रोनाल्ड बार्ट्स का डेथ ऑफ एन ऑथर, तो उन्होंने सही में ऑथर को मार दिया, यानी कि ऑथर का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया। और जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ऐसे नैरेटिव्स जो है वो चलाता है और फिर वो पूरी दुनिया भर में चलते हैं। जैसे हमारे वहां बीच में आया था ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड थिएटर का कंसेप्ट आया था अमेरिका में। तो 20वीं सदी में हमारे वहाँ गुजराती में ये चीनू मोदी वगैरह सब लोग चालू हो गए उसके ऊपर ड्रामा लिखने, एब्सर्ड ड्रामा में। अब एब्सर्ड ड्रामा और एब्सर्ड का कंसेप्ट क्यों आया अमेरिका में या तो यूरोप में, उसका एक हिस्ट्री है पूरा। जैसे कोई भी क्या कहते हैं थॉट आता है या आइडिया आता है तो इसके पीछे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता ही होता है। तो जैसे मैं बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया और अमेरिकन ड्रीम करके भी एक पूरा कंसेप्ट है, एक सक्सेस का अमेरिकन ड्रीम, यानी एक सक्सेस का ड्रीम का कंसेप्ट है। तो उसमें जैसे हम कहते हैं ना कि रातों रात माला माल हो जाना, आजकल जो इंडिया में भी लोग जो क्या कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ते ढूंढते हैं या किसे कहते हैं कि साइबर फ्रॉड करते हैं, ये सब जो लोग हैं उनके पास ये अमेरिकन नहीं लेकिन आज इंडियन ड्रीम बन गया है, उनको भी रातों रात करोड़पति बन जाना है। तो ये कंसेप्ट जो अमेरिका से चलते हैं ना वो 100 साल में यहाँ तक आ जाते हैं और अब तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये डेथ ऑफ द ऑथर ये अमेरिका का चला और उसके पहले मैंने जैसे बताया थिएटर ऑफ एब्सर्ड चला और यहाँ 20th सेंचुरी में इंडियन ऑथर्स इसको इमिटेट करने लगे, यानी उस टाइप के। जैसे मैं बताऊँ कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में एडवर्ड एल्बी करके राइटर हो गया जिसके ऊपर मैंने एमफिल किया था, और अनेक क्या कहते हैं ये यूरोपियन राइटर्स भी हुए, जैसे ऑसबॉर्न हुआ, उन्होंने लिखा वेटिंग फॉर गोडो। तो ये प्ले जो था उसका एक इमिटेशन यहाँ पे भी हुआ गुजराती में। तो ये लिटरेरी क्वालिटी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि एब्सर्डिज्म इसीलिए आया कि उनको लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे अब आप अभी ये कौन सा कंट्री है, रशिया और यूक्रेन में जाके सभी को पूछो तो उनका लाइफ के प्रति उनका एंगल क्या होगा देखने का, अलग ही होगा। डिप्रेशन में होंगे वो लोग, उनको लगेगा कि ये लाइफ जो है कुछ काम का नहीं है, एब्सर्ड है, ये लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। युद्ध के बाद ये फीलिंग आती है, जैसे महाभारत के युद्ध के बाद जो पांडवों में भी आया था। तो ये जो फीलिंग है हमारे यहाँ इंडिया में तो आया ही नहीं, क्योंकि भारत का कोई डायरेक्ट रोल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में था ही नहीं। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो हमारे लिए एब्सर्ड है, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस या उसका कोई मीनिंग हम नहीं समझ सकते जब तक कि वो फीलिंग हम नहीं करते, उस डिप्रेशन में से हम पसार ही नहीं हुए हैं। तो हमें वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हमें वो अगर लिख भी दिया नाटक तो वो रीडर्स को कैसे अपील करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अमेरिका जो है वो ऐसे नैरेटिव्स चलाता है और वो विश्व भर में चलते हैं, और भारत जैसे लोग तो ज़्यादा जल्दी से उसका इमिटेशन कर लेते हैं, नकल करते हैं। तो वैसे ही ये डेथ ऑफ द ऑथर, वैसे ही उन लोगों ने मैकोले वगैरह ने यहाँ के कह दिया था कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। हाँ, तो वैसे ही इन लोग सबको मारना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने ऑथर को भी मार दिया, उन्होंने रीडर को भी मार दिया, उन्हें पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को मार दिया। तो इस तरीके से सब चलता रहा है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि अभी एफ.आर. ल्यूइस पे हम आए हैं। एफ.आर. ल्यूइस ने ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बात करी and he attempted to set out his conception of the proper relation between form and composition and moral interest in art and life. उन्होंने कहा कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसका फॉर्म, उसका कंपोजिशन, उसका कंटेंट, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको आप अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि आर्ट जो है, आर्ट जो लाइफ में आर्ट का और मॉरल इंटरेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है, यानी आर्ट एंड वैल्यूज दे गो टुगेदर।
मॉरल वैल्यूज। जैसे मैंने कहा ना कि इंग्लिश में 2 प्रिंसिपल्स है, एक है आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर मॉरलिटी। तो यहाँ एफ.आर. लेविस जो है वो फिर से वही बात ले आए कि आर्ट शुड बी विथ मॉरल इंटरेस्ट, इट कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम life. So life is the amalgamation of art as well as moral interest. यानी वही आर्ट है जो लाइफ का रिफ्लेक्शन है और जो हमें कुछ ना कुछ मॉरल मैसेज देके जाता है. So this proved to be a contentious issue in the critical world as Lewis refused to separate art from life. तो यही ग्रेट ट्रेडिशन की बात इन्होंने 1948 में गई. ये पहले की बात है. यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे जरा ये अपनी स्लाइड्स जो है वो अरेंज करने का टाइम नहीं मिला था, तो सॉरी फॉर दैट. लेकिन ये जो बात है वो पहले आती है, जैसे आइए रिचर्ड्स और उनके साथ में. लेकिन लास्ट में जो आता है वो जैसे मैंने बताया वैसे ये आता है क्लोज रीडिंग और जो रोनाल्ड बार्थ्स वगैरह की बात करी ना हमने, डेथ ऑफ द ऑथर, और उसी ने फुल स्टॉप रख दिया. और इसीलिए जैसे ऑब्जेक्शंस आए, काफ़ी कॉर्नर से ऑब्जेक्शंस आए, न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो थे उन्होंने उनके बारे में ऑब्जेक्शन लिया कि ये नहीं हो सकता, रीडर रिस्पॉन्स थियोरी वाले ने लिया और ट्रेडिशनल जो क्रिटिक्स थे उन्होंने भी लिया. लेकिन ये इसके आगे भी जाता है, न्यू क्रिटिसिज्म के बाद एक नया एज आता है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल फॉर्मलिज्म आता है. तो फॉर्मलिज्म जो है रशियन फॉर्मलिज्म, तो बेसिकली उसका जो ग्राउंड है वो रशिया है. तो इसीलिए मैंने इसमें रशियन नाम नहीं लिए क्योंकि आपको वो याद रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे भी हो रही थी. लेकिन हम उसका जैसे बीच में किसी ने बताया ना सार तत्व लेते हैं, हम उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और हाउ दे आर रिलेवेंट फॉर अस, क्योंकि इसके बाद का जो हम थियरी पढ़ने जाते हैं वो है मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म. इन दोनों थियरीज को, मार्क्सिज्म की और स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी जो है, क्रिटिकल थियरी जो है, उनको रशियन फॉर्मलिज्म का बहुत सारा इम्पैक्ट उनके ऊपर हुआ था. तो इसीलिए मैं आज यहीं पे 22nd नंबर की स्लाइड पे एंड करती हूँ. नेक्स्ट टाइम हम 23rd से शुरू करेंगे और उसमें मैं बात का जो लेना होगा तो वो भी मैं करूँगी. मीनवाइल अगर हो सकता है तो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा हमारा? 21st को. हाँ, तो जैसे मैंने बताया मैं एफ.आर. लुईस और उनके बाद रशियन फॉर्मलिज्म नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी और रशियन फॉर्मलिज्म का इम्पैक्ट जो मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म पे हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है ना? अगर आपको किसी को कुछ सर्च करना है तो गूगल पे सर्च करके कुछ इसके बारे में जान सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा थोड़ा समझ में चीज़ें आएगी, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह. और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. हेलो, हेलो. सर मैम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है. नहीं है ना? ठीक है, तो फिर आज का कंप्लीट कर दे. अभी तक के जितने कंसेप्ट हुए उसमें मैं मानती हूँ कि आपको क्लैरिटी आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपने बीच में भी पूछते रहते, वो अच्छा है. अगर क्वेश्चंस नहीं आते या तो कोई बोलता नहीं है तो कभी कभी खो जाते हैं, हमें लगता है मैं अकेली ही बोल रही हूँ. तो आप बीच बीच में क्वेश्चंस रेज करते रहिए. एक मैडम पूछना था, ये जो एक वर्ड लिया था हाँ. कूल क्रिटिक्स के समय में, हाँ. आइकॉनोक्लास, हाँ, आइकोनोक्लास्ट. हाँ, तो उसका मतलब यही है जी. ये इसका मतलब क्या है? हाँ, आइकन का मतलब होता है बेसिकली ये जो क्रिश्चियन उसके बारे में है, रिलीजन के बारे में. तो ये है कि जैसे यीशु का चित्र है उसको वो लोग आइकन बोलते हैं. हमारे यहाँ हम प्रतिमा भी ले सकते हैं. तो वो जो प्रतिमा है उसमें सब लोग मानते हैं, एक रिलीजियस बिलीफ होता है. ठीक है ना? हमारे वहाँ भी होता है, उनके क्रिश्चियनिटी में भी होता है. इसमें जो मान्यता है यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
अगर रिलीजन का एस्पेक्ट ले तो चर्च के जो प्रिंसिपल है, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, उसके अगेंस्ट में जाके अगर आप बात करते हैं तो ही इज कॉल्ड इकोनोक्लास्टिक और इकोनोक्लासिस्ट। उसका मतलब कि आइकॉन्स के अगेंस्ट बोलना, आइकॉन्स के अगेंस्ट, या तो जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, यहाँ हम एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल की बात करते हैं, जी। तो अभी तक जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स थे इसके विरुद्ध में जाके आप कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ही वाज इकोनोक्लास्ट। राइट, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो? जैसे दयानंद सरस्वती ने हाँ जी किया जी था, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, तो इन्होंने जी। जो हमारे सिस्टम में मूर्ति पूजा तो मानते हैं, तो दयानंद सरस्वती ने उसको अपोज किया, जिसको वाद में भी ले सकते हैं, शास्त्रार्थ में भी ले सकते हैं, लेकिन आइकोनोक्लास्टिक कह सकते हैं। लेकिन वेद में कहीं पे उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ। उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते नहीं हो। करनी, हाँ हाँ, उसके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मूर्ति पूजा, क्योंकि हमारे वहाँ तो सालों है ही, हाँ, देव वगैरह तो है ही, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। हमारे पास इसके लिए कोई एविडेंसेस नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद। धन्यवाद मैम, चाहे थैंक आपको यू। अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और नहीं आया यस होगा मैम। तो हम क्वेश्चंस रेज करते रहेंगे। तो